कहाँ से स्टार्ट करना है मैम? जी मैम, ये तो हो चुका था ना, स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आप तो बोल रहे थे डिमांड्स। अच्छा। ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, so what are the scope of managerial economics? Okay, if we understand, then the first is it audible to all of you? Yes, sir. The scope of managerial economics are: number one, analyzing and forecasting demand. The very important part. You need to analyze and you need to forecast the demand. Look at the word forecasting demand. Then managing production, cost, pricing decisions, profit handling, how to handle the capital, and how to analyze the structure of the market. These are the key areas, or you can say these are the scope of managerial economics. These are the areas where the managerial economics covered. Okay, first of all, you need to forecast the demand. Okay, you need to analyze the demand: how, when, where, in which process the demand is getting higher, and why the demand is getting lower. You need to analyze in the market, and that one is very difficult task to understand, where how to forecast the demand. Sometimes you may see the products are overall excellent, but sometimes though the product is excellent, though the reviews are good, the persons or the people, the customers who are using it, they are also giving a very good feedback, but still it's not running so well. The company cannot make out a profit of that particular product. I can give you now one example of that. That is a Nivea. You know, the Nivea is a you can see is a beauty products Nivea. When it came into the market, it means everybody, maximum customers, trying to buy the product of Nivea only. Nivea perfumes, Nivea creams, and apart from that, many Nivea products are there available in the market. But though the quality of the products is good, but still the company cannot make out a profit of this particular product, that is Nivea. What is the reason? One of the most important reason is the proper distribution of the product in the market. This is the main problem the company has so far. The proper distribution of the product in the market. If you go to the market, sometimes when the product Nivea is on a peak, then suppose you go for after a week, if you go for any mall, any shop, or any beauty products, any shop corner, those who are selling beauty products, if you ask for the Nivea company's cream, lotion, body lotions, whatever, they say sorry sir, it's out of stock, next month आपको दे दिया जाएगा. Finally, this way the process goes on for months and over the months. Finally, the customer fed up and they shifted from Nivea to another important companies. Many moisturizer companies, many good companies are there available in the market, in the pipeline. So finally, the customer bound to choose, I use the word bound, to opt for another product instead of Nivea. This is the main reason.
Now, still the company is trying very hard to find the platform again, but all goes in vain. Still the customers, once the customer gone means never ever they will return back to their original positions. This is the main thing. So in managerial economics, analyzing the demand and forecasting the demand is very, very important. Though you feel that, okay, my products in the market is well going, I am earning the profit from the market, but still you need to remember that how to handle the pricing decisions. That is also another important accord with this managerial economics. Decisions of price, that too, because instead of purchasing Nivea cream, that to come in a very it's very costly. I'm talking about 2001 and 2002. At that time, the a cream cost rupees something near about 87 rupees or something. That was small one, 25 grams or 75 grams. I forgot. But you purchase the bigger one, you need to pay the double price of that. What we do in the market, what the production house used to do. The production house, whenever you try to purchase a bigger product, then the price is little bit lower as compared to the smaller one which we are purchasing. But here, the scenario is completely changed. If you go for opt for a bigger product, you need to pay the double price of it. 85 plus 85 means 160 rupees, 170 rupees you need to pay for that. This is the scenario. Now, hardly they are getting any reviews, hardly they are getting any feedback. Maybe few customers are there who are still using it, the Nivea. But if you say it's completely, not completely, but 80% eloped from the market, this product, you go and search about this product. So in managerial economics, one of the most important thing is you need to remember that you need to analyze, and apart from that, you need to forecast the demand, where my demand is. You must always be ready with your pipeline. Wherever the demand is gonna be, I need to supply. Without non-stop, I need to supply. Otherwise, customers have the perceptions in their mind. They have the perception that if it is not there, let us go for another options. Let us go for another options. Am I clear with this? Is it okay? Any doubt? Next is cost and production analysis. There is always a variable in total cost, how to control them, how to fix the cost, because nowadays costs are variable. In previous, I'm talking about previous years, more than previous year, 2022 and all, sometimes some products are there whose costs are always on a fixed, but now it's completely variable. Why? Because the many production house, many industries, many products are there which are in the pipeline. If you go, the customers are always looking for variable options, looking for cheaper qualities, not cheaper so much. Instead of I'm saying cheaper, I used to say that the quality which permit their pockets, pocket friendly. The word, the Bengali words, which is the accent of Calcutta regions, pocket friendly. The word pocket friendly derived from Calcutta regions. The southern people used to use this type of word, pocket friendly. Now people are finding out their goods pocket friendly. They want such goods which are pocket friendly. That is why cost production analysis is also very important in managerial economics. And through managerial economics only, you can estimate which cost I need to be fixed, which products are need to be fixed, which products are need to be variable. Based on that, you need to make your productions in your pipeline. Then only you can earn the optimum level of an output. Then the next one is pricing decisions, analyzing the market condition, analyzing the cost, analyzing the demand. You need to set the right price. You need to develop the effective pricing strategies. Then only your product will be going to get sold. ऐसा नहीं भी कोई भी मैं टैग लगा दिया हूं मेरा सामान बिक जाएगा, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता. आपको सबसे पहले मार्केट कवर करना पड़ेगा. You need to capture the market. You need to understand the nerves of the market, the pulse rate of the market. What market now? The peoples of the market, the peoples in the market, what they are in demand. Which one is in demand? You need to understand that. एक सामान अगर आप चाहते हो उसका वेराइटीज है,
आप उसमें से वेराइटीज में से आप अपना सामान को अगर बेचना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड मुझे कहां कहां क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा. I always give the examples to my earlier students of Britannia companies and all. Even I think I have given to you also the products of Britannia companies. It's a very old company, 18 something else, 1800 companies or 1900 something's company. But still company is not able to earn the maximum output or maximum profit from their products. Only the biscuit, only the cakes, few products, food items they have been selling. Have you, when in 2006, 2007, Britannia company used to endorse their products. They used to create a bats also. Virender Sehwag used to play with this Britannia bats. Rahul Dravid used to play with that Britannia bats. Britannia PVS Lakshman used to play with this bat. They tried very hard to capture the markets, but finally it's all goes in vain. Only the products, food products of Britannia companies, they are still now in the market, alive in the market. Otherwise, many other products are there. They are eluded, gone from. Why? Because they cannot understand the market. They cannot understand or analyze the pricing decisions, what the customer wants. Then the most important is resource allocation. This one is very, very important. Allocating resources, because resources is always limited. There is always a scarcity in the resources. Unlimited resources, never ever any industrialist will going to say this works to you. There is only a limited resources, and you need to pay your labor on raw materials, your capitals to maximize the productivity and profit. So whatever you need to do, first of all, you need to create a structure analysis, and based on that structure analysis, you need to allocate the proper resources. Hence, managerial economics are here, where through this theory, through this practical, you can able to allocate the proper resources to everywhere. Then managerial economics have another scope. What is that? Decision making capabilities, risk taking management capabilities. Why? Because this particular thing, through managerial economics, they provide a framework from where the decisions, from where they can offer some tools to evaluate the management or business risks that you are having. How can you analyze that? Through this managerial economics only. So these are the few important scope and strategies through which you can shine in your market. You can achieve organizational objectivity, constantly changing the business environment. Are you getting my points? Is it clear to you? Yes, sir. Any doubts so far? Ma'am, let's go to the next slide. बता दिया मैम, चेंज कीजिए, सब बता दिया मैंने. Linkage with other disciplines. What are the linkage means? Managerial economics have a link with economics, operational research, mathematics, statistics, accountancy, psychology, organizational behavior. These all have the linkage with, these all areas, they have a linkage with managerial economics. Okay, operational research. If you go for any research, if you go for any operations, business operations, not I am talking about Sindoor operations, I am talking about the business operations. If you go, you need to understand the scope and nature of managerial economics. You can make a link with this. Mathematics, calculations. Mathematics means calculations, proper calculations, fit strategies that only can be come up with, scope up with managerial economics. Statistics, that is also a part of a calculation, that also can be done with the managerial economics. Accountancy, that is also a part of managerial economics, a main part of managerial economics. Psychology, you can understand the perceptions and nerves of the customers if you read the managerial economics. If you make it practical, implement practically in the field of a business, then you can understand what the customer demands. Why the customer opting for this particular good, though I am giving this product half of the price. Why the customer opting for that particular good? Understand why. That is also comes under
the managerial economics and the behavior, which is one of the most important thing, that is to organizational behavior, because business environment completely depend on this behavior. If you want the change in your organizations, if you want your employees to work efficiently, dedicatedly to reach the organizational goal, then you need to understand, you need to change the business environment. And how can you need to change the business environment? Through operational or organizational behavior. So only through this you can change the business environment. And how? If you linkage your behavior, organizational behavior, with the managerial economics through their theories, through their strategies, how to deal with the employees, how to deal with the supervisors, how to deal with the managers, how to deal with their productions managers, they all are there. You need to read it and implement practically in your organizations. Automatically the environment will going to change. हर कुछ किताबों से नहीं होता है, कुछ अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी मुझे लगता है कि इसको यूटिलाइज करना पड़ता है. बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के आप इस चीज का इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो. अगर मैं किसी को गीता का ज्ञान दूं, मैंने गीता का 2 श्लोक मुझे आता है, मैंने इनको जाके बोल दिया, क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा. पता ही नहीं है श्लोक का मतलब क्या है, मैंने उसको मतलब समझाया नहीं, मुझे उस पर चलना पड़ेगा. आई नीड टू सेट माई एग्जाम, आई नीड टू सेट an example of my own, then only he can follow. कैसे इतना फॉलोअर्स बनता है? आज ओशो चला गया है, लेकिन ओशो के फॉलोअर्स आज भी है और उनकी किताबें आज भी फॉलो किया जाता है. आज बहुत सारे जितने भी सेंट्स है, पिलग्रिम्स है, वो उन्हीं के बातों को घुमा फिरा के बोलता है. मेन चीज वही बोला है. क्यों है? क्योंकि वो उन सब चीजों को पहले जाना है, पहचाना है, उनमें चला है, प्रैक्टिकली किया है, उसके बाद वो किसी को सजेशंस या डिसीजंस दे सकते हैं. तो अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट योर बिजनेस एनवायरनमेंट यू नीड टू चेंज, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज योरसेल्फ. आपका वे ऑफ परसेप्शन, आपका थॉट प्रोसेस, आपका वे ऑफ लुकिंग, यू हैव टू चेंज. अगर किसी का रिजिड एटीट्यूड रहता है, if some managers have showing their rigid attitude towards the employees, what will happen? The company will fail you, go for the loss and all. बार-बार कंपनी को एम्प्लॉयज चेंज करना पड़ेगा, बार-बार कंपनीज के एम्प्लॉयज को चेंज करना पड़ेगा. इससे फायदा क्या होगा? दिक्कत क्या होगा? कंपनी का एक रेपुटेशन इसका डाउनवर्ड हो जाएगा कि यहाँ पर एम्प्लॉयज टिकता नहीं है. कोई आएगा, अच्छा एम्प्लॉयज मिलेगा काम करने के लिए, फिर वही थर्ड पार्टी पेरोल में काम करना पड़ेगा. इन्वॉल्व अगर आप बिजनेस का चेंज करना चाहते हो, यू नीड टू सेट or change the behavior and attitudes of yourself. Am I clear? Any doubts, ma'am? Please go to the next slide. Demand analysis. ये तो सब तो पढ़ा दिया मैंने. What is the meaning of demand analysis? It means estimating the current demand and predicting the future demand, which will going to help in productions, in marketing, and making financial planning. Understand in one line. No need to go with this particular slide and all. Understand. I tried my level best to make you understand in a very simple way. क्या मैंने बताया? डिमांड एनालिसिस कैसे किया जाता है? एस्टिमेटिंग द करंट डिमांड. बात को मेरा समझो पहले. करंट डिमांड को एस्टिमेट करो, उसके बाद प्रेडिक्ट करो कि नियर फ्यूचर क्या होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो आपको अभी से पता है थोड़ा बहुत, यू कैन एनालाइज योरसेल्फ कि सामने जब कोई एग्जामिनेशन आएगा, मेरे इतना कॉन्फिडेंस तो है कि मैं कुछ लिख पाऊंगा. ये आपका ये जो फ्यूचर वाला जो पर्सपेक्टिव है, परसेप्शन है, ये ऑटोमेटिकली बढ़ता है. ठीक है? कैसे बन रहा है? रेगुलरली यू आर अटेंडिंग द क्लास. स्पेशली आई एम टेलिंग टू नीलांजन, नॉट टू Arun sir. Nilanjan and Tanman, they are every day they are attending my classes. Whenever they have a lectures, they are attending my lectures. Okay, so they already have made a perceptions in their mind. Even the teachers also, even their ma'am also, ma'am also made a perception that these are the good boys. They are regularly attending my class. So ma'am has a perceptions, and they also have a perceptions in their mind that okay, whatever the questions that comes in the examinations, definitely I'm getting right. This is called the future predictions. The same way,
You understand the current demand of a customer and then only you can predict the futures. आप अगर किसी प्रोडक्ट का पैकेजिंग तक चेंज करना चाहते हो ना, देखिएगा, एक चीज गौर कीजिए, बहुत बड़ा साइंस है, इसलिए इकोनॉमिक्स को ह्यूमन साइंस से जोड़ा गया है। रीजन बहुत बड़ा है। मैं एक छोटा सा आपको डेफिनेशन देता हूं, इसका रीजन देखो। कोई भी प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग अंदर प्रोडक्ट्स बिल्कुल बराबर है, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम मिक्सचर, सेम कंपोजिशन, सेम वेट, सेम प्राइस है, लेकिन पैकेजिंग चेंज हो गया, पैकेट्स चेंज कर दिया। जानते हैं उसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है मार्केट में? कभी गौर कीजिएगा ये सब चीजें। बहुत सारे कस्टमर्स है ये सब चीजों पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। दे ऑलवेज लुक फॉर द पैकेजिंग्स। आज अमेज़न का पैकेजिंग आप देखिए, लो माइंड ब्लोइंग पैकेजिंग उनका आता है पैकेट्स में। आप तुरंत उस चीज को अनरैपिंग नहीं कर सकते हो, इट विल गोइंग टू टेक सम टाइम। क्यों? इतना सुंदर जबरदस्त पैकेजिंग क्यों? जानते हैं कि सम कस्टमर्स, मैक्सिमम कस्टमर्स आर देयर हु आर गोइंग टू लुक फॉर आउटर कोटिंग। उनको मतलब वो नहीं है कि अंदर क्या है, उनको मतलब है कि पैकेज कितना हो रहा है। शादी ब्याह जब घर में जाते हैं हम गिफ्ट लेके, कभी किसी को देखिए बहुत बड़ा गिफ्ट एकदम रैप करके लेके जा रहा है, सबका नजर वो गिफ्ट पर होता है। दूल्हा दुल्हन जो है रिसेप्शन में उसी पैकेट में होता है, और उनको हर समय ये लगता है, खलबली लगता है कि उस इतना बड़ा पैकेट क्या दिया हो, हर समय ये सोचते रहता है। और देखिएगा इस तरह का सामान को वो बहुत सेपरेट अच्छे से कॉर्नर में और किसी बॉडीगार्ड को रख देते हैं। मामा की तरफ से हुआ, काका की तरफ से हुआ, भाई ये सामान हटना नहीं चाहिए, देख ये बहुत कीमती सामान लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग में। अंदर खुल के देखा होगा तो एक छोटा सा प्रेशर कुकर है 1 लीटर, लेकिन उसका जो, मेरे बात का मतलब तो समझो, लेकिन उसका पैकेजिंग में क्या हुआ, अटेंशन खींच लिया। सेम इसी तरह से आप अगर कोई भी प्रोडक्ट का पैकेजिंग अगर चेंज करना चाहते हो, वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा मार्केटर्स में और कस्टमर्स के माइंड पे। इसीलिए सोच समझ के पैकेजिंग को नया बनाया जाता है। अभी ब्रिक्स फार्म या ब्रिटानिया बिस्किट्स का कुछ पैकेजिंग चेंज हुआ है, इससे उनका जो इन्फ्लेशन रेट है, उनका जो रेट ऑफ इश्यू है, इनका जो प्रॉफिट लेवल है वो बहुत बढ़ गया है। जस्ट चेक द स्टॉक एक्सचेंज। आप लोग थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज की पढ़ाई कीजिए, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो इसके रिलेटेड आप लोग थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। लुक फॉर द स्टॉक, what is the reason why these companies are looking so far, going so far? Because of their some changes. अंदर सामान वही है, थोड़ा सा इंप्लीमेंट्स, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करके अपना फ्यूचर वो सेट कर लेते हैं कि नियर फ्यूचर मुझे फायदा पहुंचाएगा। दिस द कॉल द डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. But sir, आप जो example दे रहे हो about changing the packaging and all, that is mainly a marketing strategy because to be in the competitive environment, they have to modify their packaging as per the latest trend. But apart from that, अगर मैं demand का बात बोलूँ, ये भी तो एक factor होता है ना कि अगर उस product का demand उस area में है, then only they will rise the production over there or might be reduce it. ये भी तो factor हो सकता है। मैं इसको घुमा के थोड़ा सा पूछता हूँ, क्या जरूरत था फिर पैकेजिंग के, पैकेजिंग चेंज करके वो सामान वहीं पर बेचने का? उसका तो आउटलेट्स बहुत जगह है, उसका आउटलेट्स बहुत जगह है, क्या जरूरत है मुझे पैकेजिंग चेंज करके अपना बढ़ाने के लिए? क्या स्ट्रेटेजीज है? यही तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। अमूल कंपनीज का जो प्रोडक्ट दूध है कितना साल तक चेंज नहीं हुआ है। कैन यू एवर इमेजिन ऑफ दिस? जैसा लोगो, जैसा क्वालिटी, जैसा टेक्सचर, जैसा प्लास्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग रिमेन द सेम। क्या मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहा है? वो चाहता तो चेंज कर सकता है, लेकिन वो जो है वो चेंज दूसरी जगह पर कर रहा है, टेट्रा पैक्स ला रहा है, और जहां जहां कुछ चेंजेस है वहां ला रहा है। वो अपना जो मेन प्रोडक्ट्स है उसमें हाथ तक नहीं डाल रहा है। बोलो आज के डेट में कोई कंपटीशन करने वाला? मीठा ने अपना चेंज किया है, और भी जितने बार सारे दूध पैकेट है उतने ही चेंज किया है, बहुत सारा पैकेट चेंज किया है, लेकिन टक्कर नहीं दे पा रहा है। हम एक तरफ से सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा के सोचो तो आपको आंसर मिल जाएगा। स्ट्रेटेजीज है, ठीक है, हम समय के साथ चल रहे हैं, ओके, नॉट नो इश्यूज, लेकिन
पैसा चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट्स चेंज अपना कर रहा है, पैकेजिंग चेंज कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो इंटेंशन है। क्या इंटेंशन है? फ्यूचर इंटेंशन है कि कस्टमर्स और अट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं 2 बिस्किट बढ़ा देता हूं अंदर, समझो निरंजन को, मैं सिर्फ 2 बिस्किट बढ़ा देता हूं और लिख देता हूं 125 ग्राम्स। लुक एट द चेंज, लुक एट द चेंज। दिस ऑल आर साइंस, साइकोलॉजी, इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को साइकोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। दिस इज द रीजन। मैं सिर्फ 2 बिस्किट बढ़ा रहा हूं और लिख दे रहा हूं 125 ग्राम्स। व्हाट इज द रीजन? प्राइस मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं और 2 बिस्किट ऐड कर रहा हूं, 125 ग्राम, मेरा मार्केट सेल हो जा रहा है। साइकोलॉजीज, मैक्सिमम कस्टमर्स पे ये रिसर्च किया गया है। These are the types of customers who always look for some privileges, who always look for some profit. And I always use that particular word, Calcutta accents, pocket friendly. ये यहां पर फिट बैठता है। This is the future analysis of marketing. वो फ्यूचर में स्टेन करने के लिए, वो फ्यूचर में स्टैब्लिश होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सब हथकंडे करते रहते हैं। जिनको समझ में आता है वो तो चलो ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आता है। जो ऑफर क्यों देते हैं बताओ, जितना भी पुराना स्टॉक्स है उसको क्लियर करने के लिए ये स्ट्रेटेजी है। पुराना स्टॉक्स जब हम क्लियर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी कुछ हम अर्न करेंगे। ये ही मेरा फ्यूचर स्ट्रेटेजीज है, फ्यूचर प्लान। इलेक्ट्रॉनिक्स, आप हर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लोग जानते हो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स। So your voice is cracking. What can I do if my voice is cracking? So you have to rejoin. टावर में चढ़ जाऊं क्या? You have to rejoin, sir. रिजॉइन करने से यही प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं अंबानी नहीं हूं कि टावर में चढ़ के टावर घुमा दूं। आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी आ रहा है समझ में, सुनाई दे रहा है? इज इट क्लियर राइट नाउ? Yes, sir. अभी तो ठीक है। हेलो, सुनो अब ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था, मेरा लूप फॉल कर दिया। कहां पर था मैं? पर आई वॉज, सर आप एग्जाम्पल दे रहे थे क्या एग्जाम्पल दे रहा था? सर ऑन दैट पॉकेट फ्रेंडली मैटर एंड हाउ इट इज बात रिलेटेड मैंने टू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद भी सुनाई नहीं दे रहा है, वॉइस वाज ब्रेकिंग। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स तो नाम सुने होंगे आप लोग ने, बहुत सारा मार्केट में Yes, sir. कैप्चर किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ। आइटम्स। तो ये जब सेल्स अपना देते हैं, ये बहुत सारा ऑप्शंस देते हैं, बहुत सारा सेल्स देते हैं, बहुत सारा डिस्काउंट देते हैं। व्हाट इज द रीजन? जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स एंड जस्ट टू क्लियर द ओल्ड स्टॉक। अगर आप कोई भी ओल्ड स्टॉक का बार कोड रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये का मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है और इसका एक्सपायरी डेट कब हो चुका है। जस्ट रीड द बार कोड ऑफ दैट। ये थोड़ा सा, ये सब ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सबको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए। आप जाइए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए, जस्ट आपके पास तो मोबाइल है, स्मार्टफोन, एवरीवन इज यूजिंग अ स्मार्टफोन, जस्ट टैप ऑन द बार कोड, you get the clear details of that particular product। और हद तो यहां तक हो गया है कि इस बार का एक न्यूज आया है, my colleague used to buy, ये गया है, वो इकोनॉमिक्स है, उनको पास नॉलेज है, उन्होंने देखा कि बार कोड हटा दिया गया है, वहां पर मार्कर से स्क्रैच कर दिया गया है। दिस इज द रीजन। तो बहुत सारा डिमांड एंड सप्लाई, फ्यूचर में टिके रहने के लिए बहुत सारा हथकंडे अपनाया जाता है, बहुत सारा कुछ इंप्लीमेंट्स, प्रोग्राम्स, प्लान्स किया जाता है, स्ट्रेटेजीज तैयार किया जाता है कि मैं अपना ओल्ड स्टॉक को कैसे निकालूं। शॉपिंग मॉल चले जाइए, मॉल में जो फील्ड सुपरवाइजर होते हैं, ग्राउंड सुपरवाइजर नॉट फील्ड, जो ग्राउंड सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है, आफ्टर 12 आवर्स ये जो ड्रेस देख रहे हो इसको जैसे भी करके आपको हटाना पड़ेगा। यू नीड टू रिमूव दिस ड्रेस। कैसे बिके चाहे ना बिके, आप पहला दिन शॉपिंग मॉल्स जाइए, वही काउंटर, वही जगह जाइए, दूसरे दिन फिर जाइए, आपको देखिएगा वो सामान नहीं मिलेगा, हटा दिया जाएगा। क्यों? ताकि कस्टमर्स की आंखों में ये स्प्लेंडेड जो चकचकी है,
जो डिजलिंग जैसे होता है ना ऑफ सन, उस तरह से चकाचौंध बना के रख दे, तब जाके वो सेल बनेगा, तब जाके फ्यूचर में मेरा यहां पर फुटफॉल्स ज्यादा होगा. This is the way the demands and future demands are being calculated. Many strategies are there. Many psychological facts are there. Many Excuse me, thought sir. process are there. Sir, so you are saying that the reason for removing the dress the next day is that it creates an illusion that it has been sold. Yes, you understand right. Yes, it's trying to create an illusion. Illusion is not a right word to use it. Just to create an impact in the minds of our customers कि हम एक बार जो चीज आप पसंद करके जाते हो दूसरे दिन वो सामान अगर उस वक्त नहीं खरीदे, ये एक मैसेज है, नॉट एन इल्यूजन. ये एक मैसेज आपके पास जाना है, इनडायरेक्ट मैसेज आपके पास जा रहा है कि आप अगर वो सामान उस दिन आके नहीं खरीदते हो तो दूसरे दिन वो सामान नहीं मिलेगा. ये इल्यूजन्स नहीं मैं कह सकता हूं, ये आपके पास एक इनफॉर्मल मैसेज जा रहा है. ताकि क्यों ऐसा कर रहा है? ताकि आप तुरंत जाए और जाके वो सामान लेके आ जाए. आप रिलायंस स्मार्ट में कभी चले जाइएगा, रिलायंस स्मार्ट में आप जाइएगा, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर. अभी तो नरेंद्र मोदी जी जब तक ये डिस्काउंट वाला ऑफर लाया है कि प्राइस और घट जाएगा ये जगह, आप वहां एक बार रिलायंस स्मार्ट में जाके देखिए, फूड प्रोडक्ट्स पे जाके देखिए किस तरह का वो फूड प्रोडक्ट्स लाते हैं, किस तरह का वो सेल करते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, स्ट्रेटेजीज वो किस तरह से अपनाते हैं. देखिएगा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वो जब सामान को सजाते हैं ना, और एक सामान सजा के ना वो बास्केट में रख देते, वो भी एक मैसेज है, नॉट एन इल्यूजन. वो भी एक मैसेज है. क्या? जैसा ही सेल होगा मैं नया लगा दूंगा. इसका मतलब क्या है? मेरे पास स्टॉक पूरा भरा हुआ है, आप जब भी आइए आपको नया नया सामान ही मिलेगा, आउटडेटेड वाला नहीं मिलेगा. ये तो भगवान जानता है और वो खुद जानता है कि क्या सामान वो लगा रहा है. लेकिन ये सब चीजें है, देखिएगा वो छोटा छोटा बास्केट होता है, उसमें भर के वो साइड में रख देता है. कभी ये चीज गौर किए हो? जाके गौर कीजिएगा. स्पेशली फूड आइटम्स जब खरीदने के लिए जाइएगा ना, तो देखिएगा छोटे छोटे बॉक्स जो होते हैं, कैरेज होते हैं, उसमें ना भर के सामान रख देते हैं. और ये स्टोर इंचार्ज को इंस्ट्रक्शंस रहता है, विद इन एन आवर यू नीड टू चेंज ऑल दिस. हर समय देखिएगा वो लोग ड्रैग के पास खड़े रहेंगे और हर समय कुछ ना कुछ करते रहेंगे, चेंजेस होते रह रहा, होता रह रहा. Am I clear? क्यों करते हैं ये सब चीज? Yes. Am I clear? Is it audible? Yes. क्यों करते? क्योंकि करंट डिमांड, दो ही रीजन है. एक है एस्टिमेटिंग द करंट डिमांड एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड्स. वो पहले से भाप लेते हैं फ्यूचर में किस प्रोडक्ट का क्रेज बढ़ सकता है, इसलिए ये सब हथकंडे वो करते हैं. मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. What is demand? समझाने की जरूरत नहीं. देखो, everyone supported by the willingness and ability to buy, constituents demand for a particular product or service. In other words, if I want a car and I cannot pay for it, there is no demand for the car from my side. Okay, what is the demand? Means, in one word, if I want to say, the demand means according to your resources, limited resources, whatever the particulars you want to buy, that is called the demand. But if the demand is not been fulfilled, then it will remain inside you. That cannot be, demand is not been completed. Demand means according to your limited resources, you need to fulfill your unlimited desire. That is the particular word called demand. That is called demand. Okay. लेकिन अगर वो डिमांड आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब दोनों तरफ से होता है, या तो सेल्समैन आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, या फिर आप उस चीज को एफोर्ड करने के लिए अब तैयार नहीं हो, अपना माइंड चेंज कर दिया हो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तब जाके उस समय उस चीज को हम डिमांड नहीं कर सकते, कह सकते हैं. डिमांड का मतलब है आपने ऑर्डर किया, पैसा दिया, वो सामान आप घर पे ले आओ. दैट इज कॉल्ड डिमांड. व्हाट आर द नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिमांड? कंज्यूमर डिमांड वर्सेस प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या है? कंज्यूमर गुड रेफर टू सच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स. मुझे नहीं लगता कुछ चीज समझाने का है. आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता इसमें समझाना है, कुछ एक्सप्लेन करना है. इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी.
Consumer good refers to such product and services which are capable of satisfying human needs. These are called consumer goods, such as bread, apple, rice, and so on. Okay, this give us a direct and immediate satisfaction. So, okay, these are the consumer good. Ma'am, next slide. Okay, the next is क्या है? Producer goods used by the business to produce other goods and services, such as machineries, equipments, intermediate good such as raw material, semi-finished products. These all comes under producer good. These goods are not sold directly. Remember one thing. These goods are not sold directly to the consumer, but they are essential for the production process and demand for the final consumer goods. This is called the producer goods. ठीक है, जैसे कुछ मशीनरीज हुआ, कुछ इक्विपमेंट्स हुआ, कुछ इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, जैसे रॉ मटेरियल्स हुआ, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हुआ. ये क्या है? डायरेक्टली हम सोल्ड नहीं कर पाते. डायरेक्टली वी कैन नॉट सोल्ड टू अवर कंज्यूमर, बट दीज आर essential for production process. This is called producer goods. Am I clear? यहां थोड़ा सा दिया हुआ है लेकिन एग्जाम्पल के साथ, लेकिन इसका बेसिक्स यही होगा. क्लियर है? सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. The next one is autonomous demand versus derived demand. Okay, एक और चीज था ना यहाँ पर. These goods are not here satisfying indirectly. The next one is autonomous demand versus derived demand. What is autonomous demand? Autonomous demand refer to the demand for products and services directly. क्या है? Autonomous demand are those demands which refers to the demands for product and services directly. जैसे super specialty hospital. ठीक है, एग्जाम्पल में कोई गड़बड़ नहीं है. और क्या दिया है? इफ देर इज नो डिमांड फॉर द हाउस, इफ देर इज नो डिमांड फॉर द हाउस, फॉर हाउसेस, देयर मे नॉट बी डिमांड फॉर स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स एंड सो ऑन. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ऑटोनोमस डिमांड समझा देता हूं, यहां थोड़ा सा क्लियर नहीं है. Spending the demand that is independent for income. ठीक है, जैसे एक और चीज समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, बेसिक नीड, फूड एंड शेल्टर. These are the minimum level of spending that would occur only if the income were zero. That is called autonomous demand. ये लास्ट वाला चीज जो मैंने बताया ना, इसको समझे पहले. कुछ मिनिमम लेवल ऑफ स्पेंडिंग दैट वुड ऑकर इफ इनकम वेर जीरो एंड इट डिराइव इकोनॉमिक ग्रोथ इन सम अदर मॉडल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, often it consider autonomous. Why do you know? Because it not directly tied to the current income level. समझ में आया? Is it clear? Directly tied to the common income. जैसे मैं समझाता हूं और थोड़ा सा इलेबोरेट वे में समझा. मुझे मालूम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब चीजें, टाइम लगेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. These are driven by basic human needs. Other basic hygienic product, utilities, healthcare services, these are all autonomous demand. वो जो मैम ने एक सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल वाला बात किया ना, या होटल्स वाला बात किया, these are autonomous demand. इसका मतलब क्या है? वो तुरंत ये नीड्स है, तुरंत इस नीड को फुलफिल करना, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस डिमांड.
इस सब डिमांड्स को आप कोई ग्राफ में दिखा नहीं सकते हैं। एक और छोटा सा देता हूं, जो रोज हैंड टू माउथ जिसका घर का अवस्था है, हैंड टू माउथ, वो क्या करते हैं, जितना इनकम करते हैं उतना ही खर्चा वो करते हैं। सेविंग्स इक्वल टू जीरो। इस तरह का डिमांड्स को ऑटोनोमस डिमांड कहते हैं। जैसे रिक्शा वाला, समझ लो एग्जांपल्स, 200 रुपया पर डे इनकम है। अब जैसे वो 250 रुपया लेके आया, उसमें से वो 2 केजी चावल, 100 ग्राम सरसों तेल, 50 ग्राम जीरा गुंडा, 10 रुपया का हल्दी पैकेट। आपको मालूम है किरानी का कुछ ऐसा दुकान है जहां आपको 5-10 रुपया का सामान मिल जाता है। 5 रुपया का पोस्तो, हालांकि पोस्तो 1400 रुपये किलो है, लेकिन मिल जाता है। अब वो इस तरह का सामान वो घर पे लेके आते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन 1-2 दिन बाद फिर वही सामान लेके आते हैं। इस तरह का इनकम को ऑटोनोमस डिमांड कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझाऊं, जैसे बहुत सारे शरणार्थी जब बाढ़ में फंस जाते हैं, तब उनको फूड, क्लोथिंग और शेल्टर दिया जाता है। ऑटोमेटिकली डिमांड आ जाता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के पास दरखास्त डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आपके पास आ जाता है। किसी को हेल्थ केयर में हार्ट का क्रिटिकल कंडीशंस है, तो उसको कहां पर भर्ती कराएगा, हार्ट केयर में क्लिनिक में जाके उनको एडमिशंस देगा। तो ये जो ऑटोमेटिक जो डिमांड्स बढ़ रहा है और साइड बाय साइड वो जो फुलफिल हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोनोमस डिमांड। इसका कोई ग्राफ में, इसका कोई स्टैटिस्टिकल मेजर, इसका कोई अकाउंट्स हम दिखा नहीं सकते। गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर खाता ओपन करे तो ये सारा कुछ अपना मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोल के कॉलम बना के ठेल देते हैं। बैंक में जो बैड डेट्स रहता है, बहुत सारा बैड डेट्स रहता है, बहुत सारा ऐसा है जो क्लोजिंग करता है, अकाउंट्स क्लोज नहीं करता है, पड़ा हुआ है सालों से, तो उसको बैड डेट घोषणा किया जाता है। ठीक है, अब वो पैसा फिर क्या होता है, आरबीआई के पास फिर चला जाता है या गवर्नमेंट के खजाना में चला जाता है। Am I clear? आप जीरो विड्रॉल कभी अकाउंट से नहीं कर पाओगे, आपका अकाउंट में 50 रुपया 100 रुपया रह जाएगा। फर्ज करो इस तरह से 1 लाख अकाउंट्स है जिसका 50, 100, 200 रुपया पड़ा हुआ है, दिस ऑल काउंटेड एज अ बैड डेट। अब ये क्या करेंगे, जब ये खाता फ्रीज हो जाते हैं, ये सारा जितना पैसा है, पैसा तो एक तो नहीं है, करोड़ों रुपया है, तो ये फिर पैसा उठा के गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। गवर्नमेंट अब ये सब चीजों में फिर खर्चा करते हैं और मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोल के इसको फेंक देते हैं। दिस टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड ऑटोनोमस डिमांड। क्लियर है? Yes, sir. तो सर ये हो सकता है क्या कि एक डिमांड के ऊपर दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड का कनेक्शन रहेगा, लाइक द लास्ट एग्जांपल व्हिच इज मेंशन्ड, if there is no demand for houses, there may not be a demand for steel, cement, bricks and so on. So that means autonomous and derived are linked together, interlinked. If there is no demand of house, there is no demand of steel, bricks, cement and concretes. You told na? Yeah, that is what it is written over there. हाँ, तो what does it mean? मतलब अगर हाउस का रिक्वायरमेंट नहीं है, that means there is no demand, there is no requirement of either the steel, cement or the bricks, means the building materials. तो ऑटोनोमस डिमांड इसमें कैसा आता है? तुम एग्जाम्पल्स तो पढ़ रहे हो लेकिन अंदर का मतलब नहीं समझ में आ रहा तुमको। अंदर का मतलब हमको समझाओ फिर। ऑटोनोमस डिमांड फिर हम किसे कहेंगे? व्हाट डज द ऑटोनोमस डिमांड मीन्स? सर यहाँ पे हाउस आ रहा है ऑटोनोमस डिमांड में। ऑटोनोमस डिमांड में हाउस आ रहा है, ठीक है, तो पहले बताओ व्हाट इज ऑटोनोमस डिमांड? सर जो डिमांड जो लाइक जैसा मैंने समझा, जो डायरेक्ट डिमांड होता है, लाइक बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होता है, विच इज द इनिशियल रिक्वायरमेंट। मिलांजन, ऑटोनोमस डिमांड फिर से बता रहा हूं, इट अराइजेस फ्रॉम कंज्यूमर्स नेचुरल और इंस्टिंक्ट डिजायर। This type of demand are independent demand for other goods. Demand of food, demand of clothing, demand of shelter based on situation. This is called autonomous demand. मैंने वही बात कहा ना आपसे कि बाढ़ से पीड़ित इंसान, अब उसको उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट
नेचुरल डिजायर, इंडिपेंडेंट डिमांड गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। इस तरह का डिमांड्स को ऑटोनोमस डिमांड बोलते हैं, जहां कस्टमर्स को बोलना नहीं पड़ता है कि मुझे ये चाहिए, ऑटोमेटिकली वो दे दिया जाता है। जैसे इसका सबसे एग्जांपल है, मैंने जो कहा है बाढ़ से पीड़ित, फ्लड में जो बह गया है, उन पीड़ितों को जब गवर्नमेंट ने शेल्टर, फूड, दवाइयां प्रोवाइड करते हैं, दिस टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड autonomous demand. Why? Because these demand are not customers demand. This demand are natural, independent, instant demand of a customer that doesn't require any seal, competent authority seal or not. Yes, this is the requirement, you need to do that. अब इस चीज को मैंने ओवरऑल गवर्नमेंट से समझाया। ऑटोनोमस डिमांड एक छोटे से परिवार में कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिक्शा वाला का भी एग्जाम्पल दिया। फर्ज करो जिस घर में हैंड टू माउथ अवस्था है, जो दिन आना और दिन खाना, जितना आप ला रहे हो उतना ही आप खा रहे हो, सेविंग्स जीरो है, गवर्नमेंट के घर में कुछ नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, आप कुछ सेव नहीं कर रहे, इस तरह का डिमांड को भी ऑटोनोमस डिमांड बोलते हैं। क्यों? नेचुरल है, नेचुरल है। मैं अगर उस दिन दुकान, किराने की दुकान से ये सब सामान नहीं लाऊंगा तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली मैं इनकम करके वो सामान लेके घर में पका के खा के फिर दूसरे दिन निकल जाऊंगा, फिर वही सामान लेके आऊंगा। मतलब मेरा कुछ ख्वाहिश, मेरा कुछ नहीं है, मेरा बेसिक इंस्टिंक्ट्स, मेरा बेसिक डिजायर जो फुलफिल हो रहा है, दैट कम्स अंडर ऑटोनोमस डिमांड। एम आई क्लियर? यस, एक्चुअली डेफिनेशन तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा है। इसीलिए तो मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दिया ना, कि यहाँ जो लिखा हुआ है उस चीज को पहले गहराई से समझो। आप ऊपर से डेफिनेशन समझोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाओगे। Autonomous demands are those demands that are consumers' natural, look at the word I am using, natural or instinct desire, independent demand for other goods. जैसे basic human needs, cloth, food, shelter, autonomous demand. Household essential, soap, toothpaste, toothbrush, electricity, geyser, autonomous demand. Fuel is an autonomous demand, but bike cannot be called as an autonomous demand. It is your passion. But inside the bike, you are fulfilling, you're filling gasoline or petrol or diesel, whatever you are giving to your four-wheeler or two-wheeler. That is autonomous demand. But purchasing car or bike is your passion. That cannot be counted as your autonomous demand. Understand the difference between these two. Purchasing of a car or a bike cannot be an autonomous demand. It is your passion. But उसके अंदर जो आप तेल डाल रहे हो ना, वो आपका ऑटोनोमस डिमांड है, क्योंकि आपको पता है बिना मैं तेल अगर डालू या गैसोलीन डालू या कुछ भी ना डालू, ये जो मेरा गाड़ी है ये घर में पड़ा पड़ा सड़ेगा। साइकिल खरीदना, और नीचे लेवल से समझाता हूं, साइकिल खरीदना एक जिम्मेदारी भी है, एक पैशन भी है। साइकिल में हवा भरना वो मेरा ऑटोनोमस डिमांड है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? उस प्रोडक्ट को हम ऑटोनोमस डिमांड कहते हैं, जहां हमें नेचुरल, इंडिपेंडेंट तरीके से, कोई बोले चाहे ना बोले, वो काम मुझे करना पड़ेगा। आप सुबह साबुन से एक दिन मत नहाओ, दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज एन ऑटोनोमस डिमांड। बट एक दिन टूथब्रश नहीं करो, ये आपका ऑटोनोमस डिमांड है। समझो एग्जांपल्स को। इसमें बहुत जन फंस जाता है क्वेश्चंस में फंस जाता है। परचेसिंग बाइक कैन बी काउंटेड एज एन ऑटोनोमस डिमांड? नो, नेवर। Purchasing of a bike, four-wheelers, that is your passion, that is your desire, that is your dream. But fulfilling the petrol in the bike or your four-wheelers, that is the all autonomous demand. क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं चलेगा तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, मेरे घर में पड़ा सड़ेगा। Am I clear? This is the basic autonomous demand and demand. Purchasing the bike can be autonomous demand if the bike is the requirement, but which bike they are purchasing, that is not coming under autonomous. यार निरंजन तो घुमा के फिर दिया, मैंने इसीलिए ना एक बार में कहा दिया, परचेसिंग ए बाइक कैन बी ए डिमांड। परचेसिंग ए बाइक कैन बी ए डिमांड। अब मैं जाके आपको निरंजन बोलूंगा, मैंने क्यों कहा, बहुत गहराई से कहा, अब जाके चलिए आपको बाइक तो खरीदना है ना, चलिए जाके तो मुंपेट ले लीजिए। Will you tell me frankly? Will you? आपका तो वो डिमांड है ना। हाँ, वो मेरा रिक्वायरमेंट है, तो मेरा अगर रिक्वायरमेंट है मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूं।
लेकिन जैसे ही आप चूज में जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे, वो फिर आपका पैशन नजर जाएगा। इसलिए मैंने ये सब क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो जाता है, मतलब जवाब ठीक से नहीं दे पाता। मैंने क्या कहा, आपने कहा डिमांड मेरा पैशन दोनों से मैं काउंट कर सकता हूं, ऑटोनोमस भी कर सकता हूं डिमांड। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर डिमांड है तो आप फिर मोपेड ले लीजिए, फिर पुराना गाड़ी ले लीजिए, पुराना गाड़ी भी तो है आपका अगर काम चलाने वाला है तो आप सेकेंड हैंड ले लीजिए, बहुत सारा ऐसा है सेकेंड हैंड ले। लेकिन आप अगर वही सामान दुकान से जाके ग्रेडेड वाला लेते हो, तब ये आपका तो डिमांड नॉर्मल वाला डिमांड नहीं होगा, ये आपका पैशन हो जाएगा। Am I clear? This is the difference. इस चीज को बढ़िया से समझ, क्लियर है? हाँ सर। Is it clear? What is your name? I forgot the name. Yes, sir. Difficult to pronounce. Ionisa. What is the meaning of Ionisa? Sir, actually, it is based on the 108 names of Ma Durga. So, it Ionisa, was in based on Sanskrit, 100. yes. It's a Sanskrit word. Ionisa. वाह, Yes. क्या बात है। ठीक है, चलो आज यहीं पर रहने देते, नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉरी मैम, आज कंप्लीट नहीं कर